بات کریں گے پاکستان کی ایک اور بڑی سفارتی کامیابی کی۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی غیر معینہ مدت تک بڑھا دی۔ کہا تہران کی جانب سے متفقہ تجاویز پیش کرنے اور مذاکرات ختم ہونے تک سیز فائر رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر جنگ بندی کا وقت آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ براہ راست حملے روک دیے، لیکن سمندری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ آبِ ہرمز کھولنے سے معاہدے تک پہنچنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ آبِ ہرمز اس وقت امریکی کنٹرول میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت اس وقت شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ ناکہ بندی ختم ہوتے ہی اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا واشنگٹن ہمیں مذاکرات کے لیے تیار پائے گا۔ اگر وہ جنگ چاہتے ہیں ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی ہماری بنیادی شرط ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز میں 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بحری جہاز MSC فرانسس کا اسرائیل کی ملکیت ہے، جبکہ دوسرے جہاز پر پیناما کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ دونوں جہازوں کو سمندر سے ایرانی ساحل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ برطانوی میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے مطابق آبِ ہرمز میں آج 3 جہازوں پر فائرنگ ہوئی، تاہم بحری جہاز اور عملے کے ارکان محفوظ رہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ پائیدار امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور ایرانی سفیر کی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور پائیدار امن کے لیے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کی جیب پر بھاری۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگن نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ مانگ لیا ہے۔ 1500 ارب ڈالر بجٹ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بجٹ تجاویز کے مطابق 18 جنگی بحری جہازوں کے لیے 65 ارب ڈالر مانگے گئے ہیں۔ بھاری رقم ہے یہ۔ ایک سال میں 85 جدید ترین F-35 طیارے حاصل کیے جائیں گے، جس پر 102 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ ہوگی۔ ڈرون پلیٹ فارمز کی تعمیر پر 53 ارب ڈالر کی اخراجات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 ارب ڈالر اینٹی ڈرون ایمونیشن کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ فوج کی تنخواہوں میں 5 سے 7% اضافے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق 44,000 نئے فوجی بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ امریکی چینل CNN کا کہہ رہا ہے ایران جنگ کے بعد امریکہ کو میزائلز کی کمی کا سامنا ہے۔ دوبارہ لڑائی کی صورت میں امریکہ کے میزائلز کے ذخائر ختم ہو سکتے ہیں، یہ خدشہ ظاہر کیا گیا۔ میزائل ذخائر کی پہلی والی صورتحال میں بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ داد و شمار جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست اور عالمی امن کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا بڑا خطرہ ٹل گیا۔ پاکستان نے پہلے تاریخی جنگ بندی کروائی، پھر دوسری بار اس میں توسیع بھی دلوائی۔ سول اور ملٹری قیادت کی مسلسل سفارتکاری رنگ لے آئی۔ پاکستان خطے پر منڈلاتے جنگ کے بادل ایک بار پھر ہٹانے میں کامیاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان سنگین تصادم غیر معینہ مدت کے لیے ٹل گیا۔ یہ پہلی بار نہیں، پاکستان پہلے بھی امن کا علمبردار رہا۔ 8 اپریل کو پاکستان نے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی تاریخی جنگ بندی ممکن بنائی۔ پاکستان تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ 11 اپریل کو فریقین کے اعلیٰ سطح کے وفود اسلام آباد پہنچے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس نے کی۔ ایرانی وفد سپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں میدان میں اترا۔ اسلام آباد میں دونوں حریف 21 گھنٹے تک آمنے سامنے بیٹھے اور اپنے اپنے نکات پیش کیے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے تک نہ پہنچ پائے۔ تعطل توڑنے کے لیے پاکستان نے ایک اور کوشش کی اور امن مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دورے کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران میں اہم محاذ سنبھالا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب اور عالمی طاقتوں سے مسلسل رابطہ رکھ کر مذاکرات کا تسلسل ٹوٹنے نہ دیا۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی ختم ہونے کو تھی تو دنیا ایک بار پھر سانس روکے کھڑی تھی۔
कि कहीं बारूद फिर ना बरसने लगे। ऐसे में पाकिस्तान ने फिर फ्रंट सीट संभाली। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बराह रास्त अपील पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तौसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो एक जिम्मेदार रियासत और आलमी अमन का अलंबरदार है। पाकिस्तान का ये मुखलिसाना किरदार न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। फलस्तीन में इसराइली फौज ने सफाकत की इंतहा कर दी। मगरबी किनारे में शुहदा के जनाजे के दौरान धावा बोल दिया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी यहूदी आबादकारों के हमले में शहीद 2 नौजवानों की तदफीन की जा रही थी। सिहोनी फोर्सेस ने सोगवारों पर हमला किया, फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके। शुरका पर बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। गजा में भी सिहोनी फौज के ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। कराची का रुख करते हैं। खबर शामिल करें, लांढी दाऊ चौरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 7 साल का बच्चा जाँ भाग हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, शहर कायद में एक और जो है वो ट्रॉलर एक और नन्ही जान ले गया, क्या कार्रवाई की गई अब इसके बाद? देखिए, बिल्कुल शहर में जो बड़ी गाड़ियां हैं वो जाने लेने का सबब बन रही हैं और एक और जो है हादसा हुआ है और एक और जान चली गई है। ये वाकया जो है दाऊ चौरंगी के करीब पेश है, जब तेज रफ्तार ट्रेलर ने जो है एक मोटरसाइकिल सवार मामू भांजे को टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हुए थे। जो बच्चा है जिसकी शनाख्त साद के नाम से हुई है, 7 साल की, वो जो है दौरान इलाज जब दम तोड़ गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो ट्रेलर ड्राइवर था वो मौके से फरार हुआ था, ताहम अब उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो ट्रेलर है वो कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो गया। 22 अप्रैल 2025 को मोदी हुकूमत ने मुनज़्ज़म साजिश करके अपने ही शहरी को हलाक किया। सूबा बिहार के इलेक्शन में सियासी फायदे के लिए पहलगाम की पुरसुकून वादी को खून में नहला दिया गया। भारतीय इल्ज़ाम तराशी पर पाकिस्तान ने शफाफ मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की। भारतीय हुकूमत ने सच सामने आने के डर से पाकिस्तानी पेशकश मुस्तरद कर दी। दुनिया भी मोदी सरकार के बयानिए को झूठ का पलंदा करार दे चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पहलगाम वाक़या भारत का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने बार बार गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश की, मगर मोदी सरकार ने आज तक कोई जवाब दिया, ना ही सबूत पेश कर सकी। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। इस इंक्वायरी से भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। भारत की एक तारीख है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, एक खोखली नारेबाजी के ऊपर और एक बिल्कुल भोंडे तरीके से ये सारा मामला किया गया। भारत दहशतगर्दी को इस्तेमाल कर तौर एक पॉलिसी के, और भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहा है। भारत की स्टेट की पॉलिसी है टेररिज्म। इनको इस दहशतगर्दी की पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर नाकामी होगी और मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इनको मुंह की खानी पड़ी। भारत याद रखे कि कोई भी मिस एडवेंचर इट विल बी मेट विद अ फर्म, डिसाइसिव एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स। किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाए, और ये जवाब फैसला कुन जवाब होगा। मुल्क के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं और पूरी कौम, पूरी हुकूमत अपनी फौज के पीछे खड़ी है। मोदी सरकार और उसका गोदी मीडिया। जी हाँ, जिक्र करेंगे गोदी मीडिया का, जहाँ हक़ाइक़ के बजाय सिर्फ और सिर्फ झूठ पर जोर है। बदकिस्मती से हमारे पड़ोसी मुल्क का गोदी मीडिया मखसूस बयानियां बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ामात और मन घड़त कहानियों को फ़रोग़ देता है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने निहायत मुतवाज़न, जिम्मेदार और मौसर सिफारतकारी का मुजाहरा किया। ऐसा किरदार निभाया जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। भारतीय कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे भी सच बोले बगैर न रह सकी। मोदी सरकार को मुखातिब करके कहा, 56 इंच की छाती में कलेजा चूहे का। एक और खातून सहाफ़ी ने कहा, हम तेल खरीदने या ना खरीदने के फैसले भी अमेरिका के इशारे पर करते हैं। गोदी मीडिया के एक सहाफ़ी को तजियाकार ने लाइव शो में दरबारी तक कह दिया। तो नाज़रीन, ये हैं हालात भारत के गोदी मीडिया के। तो क्या हुआ, आपको भी दिखाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गोदी मीडिया का इशू ये है कि वो एक आइसोलेशन के भी शिकार हैं और दूसरी बात डिसोरिएंटेशन का भी शिकार हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब वो जाएं तो जाएं कहाँ। और सीधी सी बात यह है कि भारत बुरी तरीके से एक तन्हाई का शिकार हो चुका है और ये बात उनको खाई जा रही है और जिसका असरात बराह रास्त उनके न सिर्फ मीडिया के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि एक अरसे से वो जो झूठ बोल रहे थे वो दुनिया के सामने आश्कार होना शुरू हो गया। साथ ही साथ जो है भारत के लोगों ने वो मीडिया देखना शुरू कर दिया है। रवेश कुमार पांडे, जिन्होंने खुद ये नाम गोदी मीडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी ने गोद लिया हुआ मीडिया, तो ये नाम उन्होंने रखा था। और ये गोदी मीडिया जो है वो अब एक अजाब बन चुका है भारत के लिए, क्योंकि उसने भारत को एक बहुत ही कोई बरतर मुकाम पे पहुंचा दिया था, अवतार का तो बस्तखबार दर्जा दे दिया था, लेकिन वो तो निकला तो बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं कि कुछ भी नहीं, जिसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो अब जो उनकी इससे सियासत पे भी फर्क पड़ रहा है। जो भारतीय सरकार है, क्योंकि वो तो झूठ पे कायम थी और वो झूठ के ऊपर झूठ बोलती थी और इतनी तेजी से और इतनी सफाकी से बोलती थी कि वो, और इतना तवातर और ज्यादा बोलती थी कि लोग ये उसको सच समझने लगे थे। लेकिन अब दुनिया ने जब इंटरनेशनल मीडिया देखना शुरू किया, पाकिस्तानी मीडिया देखना शुरू किया और इसी तरीके से वीपीएन लगा के पाकिस्तानी मीडिया और दीगर मीडियाज को देखना शुरू किया, तो नजर ये आया कि वो तो कहीं खड़े भी नहीं है और ये सब एक बबल था जो बर्स्ट हो गया। इसलिए भारतीय सरकार जो है वो अपने मीडिया को इस्तेमाल तो कर रही थी, लेकिन दूसरी जानिब जब अमेरिका की सरकार ने भारत के किरदार पर बात करना शुरू कर दी और पूरी दुनिया के मीडिया ने, जो मुख्तलिफ उनके डायस्पोरा बहुत ज़्यादा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, गल्फ के अंदर और दीगर ममालिक में बैठा है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। और ये बातें जब आवाम तक पहुँचना शुरू हुई तो जाहिर है गोदी मीडिया के लिए एक अजाब बन गया और मेरे ख्याल में ये अजाब में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, ये भी कहेगा कि भारत के मीडिया बयानी और उसकी खारजा पॉलिसी के दरमियान आप क्या ताल्लुक देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नफरतें फैलाने वाला मीडिया, आप देखें उससे क्या हुआ। ये जब नफरतें फैलाई तो नतीजा ये हुआ कि मणिपुर के वाकयात आपके सामने आए, क्रिश्चियंस के खिलाफ हुए, सिखों के खिलाफ हुए, मुसलमानों के तो खैर खिलाफ थे ही। भारत सरकार इन चंद लोगों को, जो कि अडवाणी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सारे लोग जो थे, जो इस मीडिया के ऊपर छाए थे, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी जैसे, मेरे ख्याल में इंतहाई, उनको तो सहाफ़ी कहना सहाफ़ियों के लिए मेरे ख्याल में गाली से कम नहीं होगा। और फिर ये जो गौरव आर्या जैसे लोग, जनरल बख्शी जैसे लोग, ये तमाम वो लोग जो थे जो कि सिर्फ हैजानी कैफियत में मुब्तला थे। लेकिन जब उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ दुनिया ने देखना शुरू कर दिया तो पता चला कि भारत तो सिफर है। वो तो जो अपने आप को बड़ा एक तुर्रम खान बता रहे थे, असल में वो तो एक, मेरे ख्याल में तुर्रम खान तो क्या, वो तो किसी जगह पे खड़े भी नहीं है और भारत का कोई किरदार इस खित्ते में तो क्या, पूरी दुनिया में कोई किरदार नहीं रहा। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से अब जो गोदी मीडिया है वो एक्सपोज होना शुरू हुआ है, आवाम की नज़रों में एक्सपोज होना शुरू हुआ है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जो सूरत हाल है खित्ते की, उस पर ट्रंप का ईरान के हवाले से एक और बयान सामने आया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, और उन्होंने कहा है कि अगला दौर जो है वो जुमे को हो सकता है, यानी कि एक रोज़ बाद उसका इम्कान है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और जो जंग बंदी है उसमें एक्सटेंशन हासिल की थी, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया था। अब उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जुमे को हो सकता है। ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क पोस्ट से ये गुफ्तगू की गई है और उन्होंने ये बताया है कि जुमे का दिन हो सकता है जिस दिन ये मुज़ाकरात हों। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बताया गया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। जंग बंदी में तोसी हासिल की, पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त की और पाकिस्तान ने अमन के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया।
जिस पर अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद अब अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को हो सकता है, और इससे पहले भी बयान सामने आते रहे हैं। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से एक डेडलॉक जो बरकरार था, उसके बाद अब जो मुस्बत बयान सामने आ रहे हैं, उसमें अमरीकी सदर का ये बयान आया है कि अच्छी खबरें सामने आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जुमे का दिन हो सकता है, यानी कि आज बुध का रोज़ है, जुमेरात और जुमा, और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशारा दिया है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अच्छी खबर है, जुमे का दिन हो सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने जो डेडलॉक था जो उसको तोड़ा, और उसके बाद जंगबंदी के लिए मेज़ पर दोनों फ्रीकैन को लाया, और 47 साल बाद तकरीबन दोनों ममालिक आमने सामने बैठे, एक मेज़ पर बैठे। उसके बाद जंगबंदी में तोसी भी पाकिस्तान ने हासिल की, जिस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ़ है। अमरीकी सदर ने भी खुद सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की क़यादत का, लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया गया ट्रंप की जानिब से। और अब अमरीकी सदर ने कहा है कि अगला दौर जुमे को हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी कहा है, इशारा दिया है कि दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा है कि जुमे का दिन ये हो सकता है, अच्छी खबर है मुज़ाकरात के हवाले से। और न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ का इशारा दिया है। मुमकिन तौर पर उन्होंने बताया है कि जुमे का दिन हो सकता है, और जुमे के दिन यानी कि बुध का दिन है आज, जुमेरात और फिर जुमा, यानी कि तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर जो दूसरा दौर है मुज़ाकरात का, वो होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अमरीकी सदर ने बता दिया है, और एक इशारा भी दिया उन्होंने कि अच्छी खबर है दूसरे दौर के हवाले से, और दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, और मुमकिन तौर पर जुमे का दिन हो सकता है। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान दोनों ममालिक को मेज़ पर लेकर आया, जंगबंदी में मज़ीद तोसी करवाई। 22 अप्रैल सुबह 5 बजे के बाद का कुछ वक्त था जब जंगबंदी ने ख़त्म होना था, और उसके बाद मज़ीद उससे कुछ देर पहले ही अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की क़यादत का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया है, उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की शानदार लीडरशिप के किरदार को सराहा, पाकिस्तान की लीडरशिप को सराहा। पहला दौर जो कि इस्लामाबाद में हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से, और पाकिस्तान का कैपिटल जो कि पीस कैपिटल बना और अमन का कैपिटल बना पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आया पाकिस्तान। और इस तरीके से अब एक मरतबा फिर से तमाम जो दुनिया भर की नज़रें हैं वो मरकूज़ होंगी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा दौर होगा, और उम्मीद यही की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारा दिया है कि जुम्मे का दिन हो सकता है, यानी कि तकरीबन 2 दिन का वक्त बनता है। अब से अगर हम बात करें तो 2 दिन के अंदर अंदर मामला जो हैं वो सामने आएंगे, अमरीकी सदर ने बता दिया। और एक और बात अमरीकी सदर जो कह रहे हैं वो ये है कि अच्छी खबर है दूसरे दौर के हवाले से, और फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखें, यही डेडलॉक है। फ़ौज को हर मुमकिन सूरत से निपटने की हिदायत भी की है अमरीकी सदर की जानिब से। ये भी कहा गया है, और डेडलॉक इस बात पर है कि नाकाबंदी ख़त्म की जाए। ईरान का इस बात पर इसरार है कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी को ख़त्म किया जाए, जबकि अमरीकी सदर कह रहे हैं कि जुमे को दूसरा दौर हो सकता है। अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये भी कहा कि नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जंगबंदी उस वक्त तक बढ़ा रहे हैं जब तक ईरान तजावीज़ पेश नहीं कर देता। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जब पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया तब उन्होंने ये बात की थी। और अभी अहम डेवलपमेंट ये है, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अमरीकी सदर जुमे को मुज़ाकरात के हवाले से पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं, और ये कहते हैं कि अच्छी खबर जो है वो आ रही है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तारीफ़ की, और पाकिस्तान अब भी अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है।